Hello students, in this module we will discuss about a new chapter which name is articles. In this module we will discuss about articles, their uses, types of articles and their uses. So now what is articles? Articles are the words that are used to specify a person, thing, animal, means any noun. Here it means that we will give them a special notation. Either they are known to us or not. If they are known to us, we will use a separate article, and if they are not known to us, then we will use a different articles. So on the basis of their uses, means on the basis of known and unknown, articles are divided into two groups. The first one is definite articles, which means the articles that are which means the nouns or the words that are known to us. And indefinite means and the second one is indefinite, which means the word which are not known to us, but we generally know the name of that things or people. So here we can see that there are two types of articles. First one is indefinite and the second one is definite. Now further, indefinite articles are divided into two groups. The first one is article a, and the second one is article an. And indefinite article, article the comes. So now we will discuss them and their uses one by one. So come to the first one, indefinite article an. Uses of article an. An is used before a word beginning with a vowel. For example, an elephant, an apple, an ace, an enemy, an umbrella, an ink pad, an orange. So now here you have to understand what does it mean when we are saying that a word beginning with a vowel. It means कि ऐसे वर्ड जिनकी स्टार्टिंग वॉवेल से होती हो, जिनकी स्टार्टिंग इंग्लिश के वॉवेल से होती हो. याद रखना है, जिनकी स्टार्टिंग इंग्लिश के वॉवेल मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू से होती हो. And the most important thing is that their pronunciation should be also vowel sound. Means उनके प्रोनाउंसिएशन भी क्या होने चाहिए, वॉवेल साउंड के होने चाहिए. नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, you have to know about which vowels we are talking about. We are talking about the Hindi vowels. For example, when we are saying an elephant, so in elephant, like this, eli. So here vowel, Hindi vowel, that is swar, a is coming. Apple, apple. In apple, a is coming. Hindi vowel, a is coming. And orange, orange, a is coming. Okay, so आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या होगा जब हमें वॉवेल के जो उन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करें जो कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वॉवेल से स्टार्ट हो रहा होगा, तब हम उसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट.
with a mute h. मीन्स ऐसे वर्ड जिनके जो एच से लिखे जाएंगे, जिनका इन स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट एच से होगा, बट वो जो एच होगा उस वर्ड में साइलेंट होगा। मीन्स उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वर्ड को प्रोनाउंस करते समय एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, एन एयर, एन ऑनरेबल पर्सन, एन अर्ली विजिट। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें ये हावर नहीं आवर है, ये हेयर नहीं एयर है, ये ऑनरेबल नहीं हॉनरेबल नहीं ऑनरेबल है, ये हावरली नहीं आवरली है। अब देखिए यहाँ पर इन समय भी क्या है, आ से आवर, एयर, ऑनरेबल, आवरली। देखिए समय ए आ करके जनरली आ रहा है और एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे इन सारे आर्टिकल्स के इन सारे वर्ड के पहले भी हमने क्या किया, आर्टिकल एन का यूज़ किया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, with the consonant pronounced with the consonant pronounced with the sound of vowel। एक ऐसा कॉन्सोनेंट जिसका प्रोनाउंसिएशन करते समय उसका साउंड कैसा हो, वॉवेल का हो। फिर वही हिंदी के वॉवेल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एन LLB स्टूडेंट, एन MP, एन एक्सरे, एन FIR। तो इन समय देखिए LLB जब कह रहे हैं तो L, तो इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जबकि ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी MP में ए आता है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, जबकि क्या हम हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में MP बोलते हैं। इसी तरह एक्सरे होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो बस इतने ही आर्टिकल एन के यूजेस थे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ आर्टिकल अ। The article a is used before a word beginning with a consonant sound. For example, a car, a pen, a jug, a book. अब जैसे पहले हमने देखा कि जो वॉवेल साउंड से थे उनके साथ आर्टिकल है तो बच गया कॉन्सोनेंट। तो जितने भी कॉन्सोनेंट वर्ड वाले होंगे, ऐसे वर्ड जिनकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट होती है और जिनका वॉवेल भी जिनका साउंड भी कैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन में साउंड भी कैसा होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो उनके साथ आर्टिकल अ का यूज़ कर देंगे। वेरी सिंपल। द वर्ड on the second point, come to the second one, the word begin with vowel but pronounced with the sound of consonant। so ऐसे वर्ड जिनकी बिगिनिंग एक वॉवेल से होती है बट उनका प्रोनाउंसिएशन होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड से होगा। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न, अ 1 रुपी कॉइन, अ 1 आइड मैन। अब इसमें देखिए क्या है, इसको जब हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो आइदर यूनिवर्सिटी में यू य आ गया, यूरोपियन में यू, यूनिकॉर्न में यू, 1 रुपी में व आ गया। ठीक है, तब देखिए हिंदी का कॉन्सेप्ट, यहाँ भी हिंदी मैटर कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या देखेंगे, अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट भले ही वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तब वहाँ पर क्या होगा, हम आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे उस वर्ड के पहले। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सम कॉमन यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल अ एंड एन। अब हम उन्हीं आर्टिकल अ और एन के कुछ कॉमन यूजेस देखेंगे। फर्स्ट वन, when we talk of a thing or a person that is mentioned for the first time, means ऐसे पर्सन या थिंग जिनके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, मीन्स फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आर्टिकल अ या एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बेगर केम टू माई डोर, सी गेव हर अ नोटबुक। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या है, अ बेगर केम टू माई डोर, वो बेगर क्या है, एक भिखारी हमारे मेरे दरवाजे पर आया। इस केस में ये जो बेगर है वो मेरे लिए अननोन है। जब हम कह रहे हैं अ बेगर, मतलब हम क्या है, फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस बेगर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये हमारे लिए अननोन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम आर्टिकल अ का यूज़ कर रहे हैं। जब आर्टिकल अ यूज़ कर दिया मतलब वो हमें अननोन है या फर्स्ट टाइम हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सी गेव हर अ नोटबुक, यहाँ पर भी नोटबुक के बारे में बात हो रही है, मीन्स वो नोटबुक हमें
उसके बारे में नहीं पता, बट वो या फिर वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया होगा, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल अ का यूज़ किया गया है। नाउ सेकेंड वन, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी। किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन अगर हम यूज़ कर दें तो वो क्या करने के लिए, किसी की क्वालिटी शो करने के लिए यूज़ कर दें, तब हम उसके साथ आर्टिकल अ का यूज़ या एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ साइलॉक इज़ लिविंग इन माई नेबरहुड। इस सेंटेंस में क्या है कि एक ऐसा पर्सन है, कोई एक पर्सन है जो मेरे नेबरहुड में रहता है, और जो कि एक जो डिटेक्टिव है वो साइलॉक की तरह है, उसका दिमाग साइलॉक की तरह काम करता है। इट मीन्स कि जो वो पर्सन है वो साइलॉक नहीं है, बट वो साइलॉक की तरह सोचता है, साइलॉक की तरह उसका माइंड शार्प है। इसलिए उसकी हम यहाँ पर ये जो साइलॉक कह रहे हैं, ये उस पर्सन की क्वालिटी है कि वो एक साइलॉक की तरह है। ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस। अब यहाँ पर ये जो ही है पर्सन जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, वो उसको क्या कह रहे हैं, अविक्रमादित्य कह रहे हैं। अविक्रमादित्य कहने का मतलब वो विक्रमादित्य है नहीं, क्योंकि विक्रमादित्य तो अब है नहीं, तो विक्रमादित्य नहीं है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है फेयरनेस की, वो विक्रमादित्य से मिलती है। इसलिए हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विक्रमादित्य से, टू एक्सप्रेस हिज क्वालिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जबकि ये एक्चुअल में क्या है, प्रॉपर नाउन है, जिसको हम एज ए कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, क्या करने के लिए, एक्सप्रेस क्वालिटी करने के लिए। ठीक है, टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन और थिंग्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट यूज, बिफोर ए पर्सन नॉट नोन टू द स्पीकर। एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्सन मतलब स्पीकर को जो बात कह रहा है उसको पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अ मिस्टर कपूर, अ मिस्टर गुप्ता। सपोज कोई हमारे घर में पर्सन आया, उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर को कॉल करो, बोल देना उनसे कि गुप्ता जी आए हैं। सो आप जब जाओगे अपने फादर के पास, तो यू डोंट नो अबाउट दैट गुप्ता जी। ओके, सो आप उनसे क्या कहोगे, फादर, अ मैन इज एट द डोर एंड एड्रेसिंग हिमसेल्फ एज अ मिस्टर गुप्ता। तो वहाँ पे क्या कहेंगे, अ मिस्टर गुप्ता, अ मिस्टर कपूर, या यू कैन से दैट अ मिस्टर गुप्ता इज़ एट द डोर टू सी यू। ठीक है, आपसे मिलने के लिए मिस्टर गुप्ता दरवाजे पर खड़े हैं। ठीक है, तो ये मिस्टर गुप्ता आपको अननोन है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, अ मिस्टर गुप्ता या अ मिस्टर कपूर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिफोर द वर्ड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट, बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ डजन, अ मिलियन, 100। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स के पहले भी हम क्या करते हैं, जैसे अ मिलियन, 100 रुपये नोट, अ मिलियंस ऑफ टन। ठीक है, या अ टन्स मीन्स 1000, 100 के अबव होता है, 100 किलोस। ठीक है, 100 तो खुद नंबर में है, अ डजन 12 नंबर्स। ठीक है, तो 12 नंबर्स, तो ये सारे इन सब के पहले भी क्या करते हैं, आर्टिकल अ या एन का यूज़ करेंगे, जैसा उसके साथ यूज होगा। उस और एन नहीं, एन यहाँ नहीं दिख रहा आपको, अ ही दिख रहा होगा जनरली, क्योंकि इसके साथ क्या है, वॉवल साउंड नहीं आ रहा अभी ना, वॉवल साउंड आएगा तो हम एन का यूज़ कर देंगे। कम टू द नेक्स्ट वन। Now the next article is article the, that is definite article. So in the previous one indefinite article हमने कभी यूज़ किया था, जब कोई पर्सन को हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके यूजेस देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि ये डेफिनेट आर्टिकल इसका नाम क्यों है। So first point, when we talk about a particular person or a thing as already mentioned, known or under discussion. For example, the book is not available in the market. Let us study the lesson. So इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा पर्सन या ऐसी थिंग्स जिसके बारे में हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी किसी को बता रखा है, या फिर वो चीज़ हमें ऑलरेडी नोन है, हम उसे पहले से जानते हैं, या फिर उस चीज़ के बारे में हमने मतलब थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है, वो अभी भी अंडर डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में द बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, इस केस में क्या है, इस एग्जाम्पल में द बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, इसमें ये द बुक है, ये एक ऐसी बुक है जो तुमने ऑर्डर की थी। ठीक है, जो तुमने ऑर्डर की थी वो बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेट अस स्टडी द लेसन,
लेट अस स्टडी लेसन मतलब क्या ना, कहने का मतलब क्या, वो लेसन जो हमने ओपन कर रखा है, जो हमारे सामने है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, लेट अस स्टडी द लेसन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। द बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो बुक जिसे तुमने ऑर्डर किया था। दूसरा इस एग्जाम्पल में द लेसन कहने का मतलब वो लेसन जो हमारे सामने ओपन है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मीन्स ये हमको, वो लेसन भी हमको नोन है, वो बुक भी हमको नोन है। ओके, नाउ बिफोर second point, before proper nouns when they refer to the names of historical buildings, mountain ranges, planets, rivers, oceans, gulfs, group of islands, holy books, ordinals, states, newspapers, deserts, name of trains, hotels, shops, मीन्स ये जो भी मैंने ले रखे हैं उन सब के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, इनके नेम के पहले। ऐसे इसके जितने भी एग्जांपल्स होंगे, ऐसे जितने भी वर्ड्स होंगे जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द पर्सियन गल्फ, एक गल्फ है जिसका नाम पर्सियन है। द ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द यूएसए एक स्टेट है, एक कंट्री है। द गंगेस एक गंगा है, गंगा रिवर है। द हिमालयाज माउंटेन रेंजेस है। द सहारा डेजर्ट है। द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। द अर्थ प्लेनेट है। द रामायण होली बुक्स है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। द फर्स्ट मैन ऑर्डिनल्स है। ठीक है, उसी तरह द कालाहारी, द सहारा, ठीक है, ये डेजर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और भी होटल्स में द ताज होटल, ठीक है, द द गुप्ताज द गुप्ताज प्रोविजनल स्टोर, द गुप्ताज प्रोविजनल स्टोर, तो शॉप का नाम हो गया। ठीक है, तो इन सब के नेम के पहले ओशन में आ जाएंगे। ओशन में द द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। ठीक है, अगर किसी कैनल की बात करें, नहर भी इसमें ऐड नहीं किया, कैनल मीन्स नहर, किसी कोई इंटरनेशनल कैनल है, ठीक है, तो उसमें द पनामा, द स्वेज। ठीक है, तो ये सब क्या है, कैनल के नेम है। तो इन सब के नेम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर यूनिक इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द यूनिवर्स। ऐसी चीज़ें जो यूनिक होंगी, जो चीज़ें अपने में यूनिक हैं, उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। When a singular noun expresses a class of animal or thing, but अब यहाँ पर देखिए, वेट ए मिनट, हाँ, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग, जब कोई सिंगुलर नाउन किसी क्लास ऑफ एनिमल या थिंग, किसी एनिमल या थिंग के क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बट द इज़ अवॉइडेड विद देयर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल फॉर्म। याद रखिए, यहाँ पर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। जब सिंगुलर नाउन किसी क्लास ऑफ एनिमल या थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तब हम उसके पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे। बट अगर ये वो जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, या कोई पर्सन है, या तो नाउन जो एनिमल या थिंग है वो प्लूरल फॉर्म में हो, या वो नाउन कोई पर्सन हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। वी विल अवॉइड द यूज़ ऑफ आर्टिकल द। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर हमने एक एनिमल लिया है डॉग, ठीक है, डॉग। अब यहाँ पर क्या, एक सिंगुलर नाउन है, और जैसे हम इसके आगे आर्टिकल द लगा देंगे, तो ये मतलब इस प्लैनेट पे जितने भी डॉग हैं उन सब की बात कर रहे हैं, किसी एक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं हम। जितने भी डॉग हैं सब की बात कर रहे हैं, उनके पूरे स्पीसीज, पूरे रेसेस की बात कर रहे हैं कि वो क्या होते हैं। जो डॉग होता है वो फेथफुल एनिमल होता है। उसी तरह द रोज इज ए स्वीट फ्लावर, मीन्स इस पूरे अर्थ पे जितने भी रोज हैं, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी रोज हैं, ठीक है, जनरली अर्थ पे ही जानते हैं हम, तो वो क्या है, वो सब के सब क्या हैं, स्वीट फ्लावर हैं। तो हम सबको रिप्रेजेंट करें, उनके पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें। द काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल। काउ क्या है, मतलब सारी की सारी गाय, जितनी भी गाय हैं वो सब यूज़फुल एनिमल हैं। ठीक है, यहाँ पर द काउ कहने का मतलब काउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम काउस बोलेंगे, या तो हम ये बोलेंगे द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, या बोलेंगे काउज आर अ यूज़फुल एनिमल। ठीक है, तो जब हम काउज बोलेंगे तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन जब जब केवल काउ लिखेंगे सिंगुलर के साथ, और पूरे हमको क्लास को रिप्रेजेंट करना होगा, पूरे के पूरे काउस को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके आगे आर्टिकल द यूज़ कर देंगे।
अब यहाँ पे द सन शुड बी ओबीडियंट, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सन जो है एक पर्सन है, ये सन क्या है? पर्सन है। और यहाँ मैंने लिखा कि पर्सन्स के पहले हम क्या करेंगे? आर्टिकल द को अवॉइड करेंगे, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ ना करके हम यहाँ पर आर्टिकल अ यूज़ करेंगे, अ सन शुड बी ओबीडियंट। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन्स। किसी एडजेक्टिव के पहले जब वो क्या करे? किसी एक क्लास ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। अब यहाँ पर द रिच कह रहे हैं, मतलब क्या? रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है, ओल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये रिच और ओल्ड की बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव है, बट इस केस में क्या है कि ये क्या कर रहे हैं? ये इस अर्थ पे जितने भी रिच हैं उन सब की बात कर रहे हैं, मतलब जितने रिच पर्सन हैं सबको, कि वो क्या कह रहा है? सारे के सारे रिच पर्सन को, और इस अर्थ पे जितने भी पुअर्स हैं उन सब की हेल्प करनी चाहिए। द ओल्ड कहने का मतलब इस अर्थ पे जितने भी ओल्ड पर्सन हैं उन सब की, और द यंग कहने का मतलब जितने यंग हैं सबकी बात कर रहा है, कि सारे के सारे यंग को, सारे के सारे ओल्ड पर्सन्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, आई होप क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब के नेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द फ्लूट, द पियानो, द तबला, द गिटार, द हारमोनियम, ठीक है। ये सब के नाम के पहले भी क्या करते हैं? जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे। विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइन, ठीक है, या द बेस्ट, या द फाइनेस्ट, या द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इन सब के पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे जब सुपरलेटिव डिग्री में किसी एडजेक्टिव को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक। विद द कार्डिनल पॉइंट्स, नेक्स्ट क्या है? विद द कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स मतलब जो डायरेक्शंस होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स मतलब जो पोजीशन बताते हैं, जैसे साउथ ऐसे होते हैं ना 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं, ये क्या हैं? कार्डिनल पॉइंट्स हैं। तो इन कार्डिनल पॉइंट्स के पहले भी हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड द यूज़ ऑफ आर्टिकल द और अ, अब हम यूज़ करेंगे, सीखेंगे ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कहाँ पर हमको आर्टिकल नहीं यूज़ करना है किसी भी केस में, ठीक है। सो द फर्स्ट वन, बिफोर, वेट अ मिनट, बिफोर प्रॉपर नाउंस। प्रॉपर नाउंस के नेम के पहले, मीन्स प्रॉपर नाउंस के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउंस कहने का मतलब जितने भी नेम हैं, जो किसी के पर्टिकुलर नेम है, किसी को पर्टिकुलर नेम देते हैं ना प्रॉपर नाउंस का, याद करिए। तो उसके पहले हम जो भी नेम होंगे उनके पहले हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। जैसे शेक्सपियर, किसी का प्रॉपर नेम है दिल्ली, प्रॉपर नेम है यूएसए, प्रॉपर नेम है राम, प्रॉपर नेम है ठीक है, ये सब के सब प्रॉपर नेम है। लेकिन याद रखिए गंगा जो है वो भी प्रॉपर नेम है, लेकिन वो क्या है? एक रिवर है। तो रिवर वाले केस को छोड़ करके प्रॉपर नाउन में जो हमने आर्टिकल द में यूज़ किया, जो ऐसे प्रॉपर नाउन जिनका हमने डिस्कस आर्टिकल द में किया है, उनको छोड़ करके बाकी अदर प्रॉपर नाउन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उस केस में हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। सो शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो शेक्सपियर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल द यूज़, कोई भी आर्टिकल द या आर्टिकल अ या आर्टिकल एन कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, क्लियर। लेकिन याद रखिएगा जो आर्टिकल द में मैंने प्रॉपर नाउन डिस्कस किया है, जिनके पहले हम आर्टिकल द यूज़ कर रहे थे, उनको छोड़ के, जैसे द गंगा, द हिमालय, ठीक है, द न्यूज़पेपर, द राजधानी एक्सप्रेस, द ताज, ठीक है, इन सब ये भी सब प्रॉपर नाउन है। बट इनके पहले हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर यूनिक इन द वर्ल्ड, बिकॉज दे आर यूनिक इन द वर्ल्ड और इन द यूनिवर्स, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ कर रहे थे। अब ये यूनिक नहीं है, शेक्सपियर यूनिक नहीं है, दिल्ली यूनिक नहीं है। दिल्ली क्या है? एक मतलब एक सिटी जैसा ही है, ठीक है। ये भी यूनिक है दिल्ली, अगर हम बनाना चाहें किसी और को भी नाम दिल्ली रख सकते हैं, ठीक है, उनका कोई यूनिकनेस नहीं है, ठीक। सो नाउ मीन्स सीधे से कहने मतलब उनको आप उन आर्टिकल को उन नाउन्स को छोड़ करके, उन प्रॉपर नाउन को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रॉपर नाउन बचेंगे उनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन,
बिफोर नेम ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल के नेम से पहले, जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं उनके नेम के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे सिल्वर इज ए यूजफुल मेटल दैट टी ग्रोज इन इंडिया, ठीक है, टी ग्रोज इन इंडिया। बट याद रखिए अगर हम इनके पहले आर्टिकल द यूज़ कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने बोल दिया द ट्री, द टी बोल दिया, मतलब एक प्रॉपर, एक यूनिक या एक ऐसा ऐसी चाय जिसको प्रिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है, कि वही चाय पत्ती चाहिए उसको, ठीक है। तो द टी कहने का मतलब कोई एक प्रीफर कर दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर को, तो हम वहाँ पर आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं किसी मटेरियल नाउन को जनरल सेंस में, ठीक है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ या आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और एज क्वालिटीज़ फीलिंग्स एंड स्टेट्स यूज्ड इन जनरल सेंस। अब याद रखिए फिर यहाँ भी जनरल सेंस की बात हो रही है। जब जनरल सेंस में किसी क्वालिटीज़, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज़ करेंगे कि जब वो क्वालिटी रिप्रेजेंट करे, फीलिंग्स रिप्रेजेंट करे या स्टेट्स, किसी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ इज़ ए नोबल क्वालिटी, यहाँ पर ट्रूथ क्या है, जनरल सेंस में है, मतलब सच्चाई की बात कर रहे हैं, नोबल क्वालिटी है, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जनरल सेंस में बात हो रही है कि ईमानदारी सबसे मतलब अच्छी नीति होती है, बेस्ट पॉलिसी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ये जनरल सेंस की बात हो रही है। बट वी कैन से, अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है, तो मतलब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। यहाँ पे हमने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोल दिया, यूज़ कर दिया है, उसको स्पेसिफाई कर दिया है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, मतलब ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब वो ऐसी सच्चाई जो उससे जुड़ी हुई है, ऐसी सच्चाई जो उससे जुड़ी हुई है, जनरल सेंस में नहीं रह गई, ठीक है, उस पर्सन से जुड़ी हुई है। तो हमेशा सच बोलता है या हमेशा झूठ बोलता है, इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही उसका स्पेसिफिकेशन हो गया, अब वो जनरल नहीं रह गया, तो इसलिए आर्टिकल द का यूज़ या आर्टिकल अ का यूज़ किया गया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस। जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं प्लूरल में, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स, कंप्यूटर सेव टाइम। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स में क्या कहने का मतलब है कि इसमें क्या है, ये जो चिल्ड्रन है, ये कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में है, काउंटेबल हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, काउंटेबल हैं बट प्लूरल फॉर्म में है। तो जब हम काउंटेबल नाउन्स को उनके प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, तब हम उनके पहले आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बिफोर लैंग्वेजेस। लैंग्वेज के नेम के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे चाइनीज़ इज़ ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, ही नोज रशियन वेरी वेल, ठीक है। इंग्लिश इज़ क्रूशियल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश इज़ मोस्ट फेमस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम इसके पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर हम किसी लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल यूज़ कर दें, अगर, ठीक है, क्या करने के लिए, उस कंट्री के पर्सन्स के बारे में बताने के लिए। जैसे द इंग्लिश कर रहे हैं, मतलब क्या, हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि हम जब भी किसी लैंग्वेज के नेम के पहले आर्टिकल लगा देंगे, द लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, उस कंट्री के पर्सन्स को शो करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसके पहले कोई भी आर्टिकल, और अदरवाइज अगर लैंग्वेज को शो करना होगा तो हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बिफोर हॉबीज, प्रोफेशन एंड स्पोर्ट्स। वेट ए मिनट, सो बिफोर हॉबीज़, प्रोफेशन एंड स्पोर्ट्स, बिफोर हॉबीज़ एंड प्रोफेशन या स्पोर्ट्स के नेम के पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे डांसिंग इज़ है प्रोफेशन, गार्डनिंग इज़ हिज हॉबी, क्रिकेट इज़ फेवरेट ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये किसी के हॉबी है, प्रोफेशन है, ठीक है, या स्पोर्ट्स है, इनके नेम के पहले भी कोई आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, किसी के नेम, किसी के हॉबी, किसी के प्रोफेशन के नेम के पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ओके, बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज़ के नेम के पहले भी नहीं करते। जैसे कैंसर इज़ ए ड्रेडेड डिसीज़, कोरोना इज़ ए फैटल डिजीज़। मैंने कोरोना के एग्जांपल में ले लिया है, देखिए जैसे आप कोरोना के बारे में जानते हैं, ठीक है। सो कोरोना इज़ ए फैटल डिजीज़ में क्या होता है, जानलेवा बीमारी है, ठीक है। तो इन सब के नेम के पहले भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, बिफोर रेगुलर मील्स एक्सेप्ट व्हेन प्रेसिडेड बाय एन एडजेक्टिव, ठीक है। किसी रेगुलर मील्स के पहले, जो हम डेली रेगुलर लाइफ में लेते हैं, उन मील्स मतलब खाने के, भोजन के समय के
पहले, भोजन के पहले हम यूज़ आर्टिकल कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर हम क्या करेंगे, किसी एडजेक्टिव से उसको यूज़ करेंगे, किसी एडजेक्टिव को प्रिसीडेड, कोई एडजेक्टिव उसके साथ यूज़ हुआ होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, मतलब उसको हम कोई एक पर्टिकुलर, मतलब एक स्पेशल टाइप का ट्रीट करने के लिए अगर हम उसको यूज़ कर दें, किसी एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर दे रहे हैं उसको, तो हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज हम जनरल सेंस में अगर बात करेंगे, मील्स की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में रेगुलर मील्स की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट 8 AM पे लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ये मेरा रेगुलर मील है, रेगुलर मील में मैं ब्रेकफास्ट 8 बजे सुबह लेता हूँ। यू शुड टेक डिनर अर्ली, तुम्हें डिनर जल्दी ले लेना चाहिए, जल्दी खा लेना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि डिनर मतलब रेगुलर भोजन की बात हो रही है, यहाँ पर कोई स्पेशल बात नहीं हो रही है। बट जो अब मैं एग्जांपल लूँगा, ठीक है, वो उनके साथ क्या हो जाएगा, अब वो आर्टिकल को अपने साथ रखेंगे, ठीक है, यूज़ किए जाएंगे उनके साथ आर्टिकल। क्यों? क्योंकि इनके साथ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है इनको स्पेशल बनाने के लिए। दे गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट, अस अ गुड ब्रेकफास्ट, गुड ब्रेकफास्ट कहने का मतलब कि एक अच्छा ब्रेकफास्ट, मतलब एक स्पेशलिटी आ गई कि वो ब्रेकफास्ट कैसा होगा, अच्छा होगा, हेल्दी होगा, ठीक है। इसलिए अ डिनर ऑन ऑनर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड, तो कैसा डिनर जो प्रेसिडेंट के ऑनर में रखा जाएगा, तो उस डिनर की क्वालिटी क्या हो गई कि वो कैसा ऐसा डिनर है जो प्रेसिडेंट के ऑनर में सम्मान में रखा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ऐसे आर्टिकल्स में ऐसे मील्स, रेगुलर मील्स, अगर वो ऐसे मील्स जो रेगुलर होंगे उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। अगर वो स्पेशल कोई मील होंगे, भोजन होगा, ठीक है, हमारे खाने का शेड्यूल होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम आर्टिकल का या द का यूज़ कर देंगे। ओके, नाउ बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक अंकल, मदर, फादर, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या देखेंगे, ऐसे कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, जैसे अंकल, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तीन सबके पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फादर विल गो टू दिल्ली टुमारो, अगर द फादर विल बोल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द मदर, द सिस्टर, द अंकल, द आंट, ये सब यूज़ हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट 3 टॉपिक्स इज in certain phrases consisting of transitive verb followed by its object or a preposition followed by its object, ठीक है। किसी ऐसे सर्टेन फ्रेजेस में जिसमें कोई ट्रांसिटिव वर्ब होगा जो कि जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट दिया होगा, या ऐसा कोई फ्रेज जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट दिया होगा, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया हो या ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो और वो फ्रेज हो, तो क्या करेंगे, उसमें भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे टू लूज हार्ट, टू सेट फुट, टू गिव ईयर, टू सेंड वर्ड, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फोर मैंने लिए हैं, इसमें क्या देखिए, यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब है, लूज, सेट ट्रांसिटिव वर्ब, गिव्स ट्रांसिटिव वर्ब, सेंड ट्रांसिटिव वर्ब, और उसके बाद क्या किया है, ट्रांसिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि इसका आगे आर्टिकल टू लगा है। अब उसके बाद क्या किया है, हार्ट, फूट, ईयर, वर्ड, ये उसके ऑब्जेक्ट हो गए, इस ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, फिर इसी में नेक्स्ट एट होम, एट लास्ट, ऑन अर्थ, बाई लैंड, बाई वाटर, बाई ट्रेन, ये सब के सब क्या हैं, ये कैसे फ्रेजेस हैं जो एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं और उनके अपने जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। जैसे ऑन अर्थ, बाई लैंड, बाई वाटर, बाई ट्रेन, एट लास्ट, ठीक है। इन सब के बाद क्या किया गया, आर्टिकल उनके इन प्रीपोजिशन का जो क्या किया गया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसलिए क्या है, ये फ्रेजेस के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करें। जैसे हम ये नहीं कह सकते ऑन द अर्थ, बाय द लैंड, बाय द वाटर, बाय द ट्रेन, हम ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इसका ट्रेन लिया जाए, ही कम्स टू स्कूल बाई बस। अब ये नहीं कहेंगे बाई द बस, नहीं कहेंगे, ठीक है। ही कम्स टू स्कूल बाई द बस नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हमेशा बाई बस कहेंगे। जब भी मीडियम की बात करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। किसी भी कॉमन नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे अगर वो वाइडेस्ट सेंस में किया गया हो। मतलब क्या, उसको हम सुपरलेटिव बना दें, उसको हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे मैन इज़ मोर्टल मतलब कि ये वाइडेस्ट है, सारे के सारे मैन, ठीक है, सारे के सारे मैन। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, गॉड क्या है, सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो इसमें सारे के सारे भगवान, ठीक है, सारे के सारे भगवान। लेकिन अगर हम द गॉडेस या द गॉडी ऐसे कुछ यूज़ कर दें, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि हम यहाँ पर द गॉडेस और द गॉडीज़ कह देंगे अगर हम सिंपली से, तो इस केस में
हम क्या कर रहे हैं, अब हम अलग अलग देवी और देवता जो हम अलग अलग बनाते हैं ना, या द डेविल्स कह दिए, द डेविल्स कह दिए, ठीक है, बुरी बुरी आत्मा, ठीक है, शैतान, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, अब हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे जब कैटेगराइजेशन हो जाएगा तो वो अलग बात होगी। लेकिन अगर क्या कर देंगे, कॉमन नाउन्स ऐसे हो जाएंगे जो वाइडेस्ट सेंस में यूज़ हो जाएंगे, जैसे गॉड, गॉड मतलब सारे के सारे भगवान, चाहे देवी हो चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, सब आ जाएंगे इसमें, ठीक, सबको यूनिक बना देंगे हम। ओके, आई होप क्लियर हो गया आपको। फिर लास्ट वन, बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, बेड, वेन, ठीक है, एंड बेड, इन सब के पहले, मतलब स्कूल के पहले जहाँ स्कूल लिखा होगा, वर्ड स्कूल का नाम नहीं, स्कूल लिखा होगा, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन और बेड, ये जो वर्ड है ना, इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम किस कब, जब हम व्हेन वी थिंक अबाउट द मेन पर्पज ऑफ द प्लेस, जब हम उस वो प्लेस मतलब जिस पर्पज से बनाया गया है उस पर्पज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस मेन पर्पज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्शन उस मेन पर्पज से परफॉर्म किया जा रहा है, तब हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल डेली, वी गो टू चर्च ऑन संडे, सी हैज़ गॉन टू हॉस्पिटल, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। इस सब में क्या है कि ये सब मेन पर्पज से हैं। जैसे ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह विद्यालय डेली जाता है, रोज़ जाता है, तो क्या है उसका ये डेली पर्पज है, वो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। स्कूल किस लिए बना है, पढ़ने के लिए बना है। जब स्कूल पे पढ़ने के लिए बना है, तो अगर कोई पर्सन पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, तो क्या है वो उसके पहले तब हम क्या करेंगे, गो टू द स्कूल नहीं कहेंगे, टू द स्कूल, गोज़ टू द स्कूल नहीं कहेंगे, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि उसी जो जिस पर्पज से वो बिल्डिंग बनी है, स्कूल बना है, उसी पर्पज से वो वहाँ पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। बट अगर हम कोई अदर पर्पज से जा रहे हैं, जैसे फादर मदर जाते हैं हमारे स्कूल पे, तब हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, फादर वेंट टू द स्कूल, फादर वेंट टू द स्कूल, फादर विद्यालय पर गए, फादर विद्यालय पर क्या करने गए, पढ़ने तो गए नहीं है, फादर फीस जमा करने या किसी चीज़ के कंप्लेन या कंसल्ट करने गए होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, आर्टिकल द यूज़ करेंगे। बट अगर आपके बारे में हो जाएगा तो आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे गोस, ठीक है, हमेशा आप जनरली क्या बोलेंगे, टू स्कूल बोलेंगे, द स्कूल नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पर पढ़ने के पर्पज़ से जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल बना किस लिए, पर पढ़ने के पर्पज़ बना है। उसी तरह वी गो टू चर्च ऑन संडेज, हम संडेज चर्च पे जाते हैं, चर्च पे क्या करने जाते हैं, संडे को प्रेयर करने के लिए जाते हैं, चर्च पे संडे को प्रेयर करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम संडे, चर्च प्रेयर करने के लिए बना है, ठीक है, भगवान की प्रेयर करने के लिए बना है, तो वहाँ पर अगर प्रेयर करने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो हम चर्च के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर हम उस किसी और पर्पज़ से जाते हैं चर्च पे, जैसे उसका डेकोरेशन करने जाते हैं, उसका, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग करने जाते हैं, तो हम क्या पे आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। सी एस गॉन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अगर हम वहाँ किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं, या कोई बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसे करने जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, कंसल्ट करने जा रहे हैं, तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। इस हॉस्पिटल से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर किसी और पर्पज़ से जा रहे हैं, ठीक है, तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। what do you go to when do you go time do you go to bed, what time do you go to bed, मतलब तुम कितने बजे सोने जाते हो। गो टू बेड मतलब स्लीप सोने जाने की बात, मतलब गो टू बेड मतलब स्लीप सोने जाने की बात हो रही है। मतलब क्या कर रहे हैं कि बेड पे तुम कितने बजे जाते हो, बेड पे जाने का मतलब जब सोने की बात होती है, सोने की बात है, ऐसे नहीं कि बैठ के आराम करने या जो भी करने है, ऐसे नहीं। जब सोने की बात होगी, टू स्लीप की बात होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले कोई आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया। तो हमने इस पूरे मॉड्यूल में हमने आर्टिकल, उसके टाइप्स, उनके यूजेस डिफरेंट और कब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, उस सारे केसेस को डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गएंगी, एंड इसको मुझे अब शायद दोबारा ना पढ़ाना पड़े, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।